हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको मोनेरा किंगडम के बारे में इम्पोर्टेंट टर्म्स पर बात हुई है। आफ्टर कमिंग ओवर द दिस मोनेरा टुडे I want to make some distinguished characters on kingdom Protista। जैसे मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि मोनेरा का ओरिजिन हुआ या इस मोनेरा को प्रोटिस्टा से लिया गया, तो सबसे पहले जो ये किंगडम का डिवीजन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, दैट इज प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा का जो इसका जो प्रोटिस्टा जो है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हीकल। तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोटिस्टा है ये ट्रांजिशनल बेस जो है, जहां से हमारे सभी जो है जितने भी आप फ्लोरा और फोना इस यूनिवर्स में हम लिविंग बीइंग की स्टडी करेंगे, वो सभी यहां से ओरिजिन हुए हैं। तो ये जो प्रोटिस्टा जो है, दे आर कॉमनली नोन एज यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। तो मैंने आपको पहले बताया कि यूकैरियोट्स, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स, यू मींस ट्रू, हाउ द ट्रू न्यूक्लियस came into the existence at random or automatically. This is a analytical question. If somebody asks you कि how the formation of eukaryotes took place, so there is no definite theory or a fixed theory that you can say ultimately the origin of eukaryotes from the simple monera like ancestors, but how that is the true karyote came into the existence। तो हम आपके सामने दो तीन थ्योरी जो है वो I want to put forward in front of you. One is invagination theory. According to this theory, according to invagination theory, suppose कीजिए this is a monerans represented by any bacteria is there, तो इस membrane में if any invagination takes place is there, ultimately the invagination reaches in a certain point and due course of time this outer membrane जो है that is broken away and this invagination membrane derived from the outer membrane, that is plasma membrane, and it becomes a nuclear membrane around the whatever that is the जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए वगैरह जो भी इसके अंदर होंगे, इस टाइप से ये न्यूक्लियस का ओरिजिन हुआ। सम पीपल से दैट सम बट ए नॉट विजिबल सम म्यूटेशन टेक्स प्लेस इज देयर by which the present form of the protista they came into the existence from the simpler form like bacteria. The most acceptable theory which is known as symbiosis, ये थ्योरी क्या कहती है? सिम that is means togetherness. According to this theory, most people, scientists, they think in environment, because the life originated in first of all water in the ocean. So in the ocean there are various type of cells are there, different form of the cells they are present in the ocean, but whatever the activities taking place in the ocean,
somehow this smaller cell enters into the larger one, and ultimately the cooperation between larger and smaller one, in which the smaller behaves like a nucleus and the larger one become a whole membrane is there. So the cooperation between smaller and bigger is there. So such a way in which the association of two cells came into the existence, in such a way the formation of eukaryote is takes place is there. And about in different theories are there, but the most acceptable theory, that is symbiosis theory. This is the brief analytical view which I want to put in front of you. दो आप लोग बहुत अच्छे ब्रिलियंट फैकल्टी से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ नहीं लगा कि आपको ये यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो कीपिंग इन व्यू ये सम बात एडिशनल क्वेश्चन दैट आई पुट इन फ्रंट ऑफ यू इज देयर. उसके बाद ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम जो है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट एक स्टेज है, और यहां से लेकर के इनका और जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर जो है फंजाई है, प्लांटी है और एनिमल या किंगडम जो है वो इसी से निकले हुए हैं. तो इसके सब माटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. व्हाट एवर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. तो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्रोटिस्टा आई वांट टू डिस्कस विद यू इज देयर. फर्स्ट इज द हैबिtat is there. The member of this protista belongs to a almost every type of, that is the habitat is there. They occupy various type of habitat is there, but mainly they are in aquatic. They are in aquatic. इस aquatic में mostly जो animals, they are in the form of planktons. They are in the form of planktons. Planktons के form पर they are in aquatic medium. The aquatic water dwelling, whether they are restricted to fresh water or marine water or both. Some form they are also present in terrestrial form where there is a damp soil, moist और damp soil, उसमें भी इनके मेंबर जो है ना मिलते हैं. It means their habitat is mainly aquatic. Some form they are also terrestrial and others are parasitic, parasitism. As you are well aware, the association of two individual in which one is benefited and other is harmed is there. तो इसमें अगर हम कोई एग्जांपल आप कोट करना चाहेंगे तो आप देखते हैं प्लाज्मोडियम, कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट. ये इसमें पैरासिटिक के फॉर्म है. वेदर इट इज ए सिंगल होस्ट और दैट इज द मल्टीपल होस्ट इज देयर. वो डिटेल में जब हम मलेरिया पैरासाइट पर +2 में जाएंगे वहां पर डिटेल में करेंगे. यहां पर इसका मतलब हैबिटाट जो है ये वेरिएबल है, बट मेनरली जो है एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. सेकंड में इनकी बॉडी जो है किस टाइप की होती है. इस किंगडम को बिलोंग करने वाले बॉडी जो फॉर्म जो है वेरिएबल इन शेप इज देयर. कुछ इरेगुलर फॉर्म में भी है, कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी, स्फेरिकल शेप में भी है. उसमें ये इस टाइप से इनकी बॉडी जो है, स्लीपर एनिमल भी क्यूल है, तो इसमें जो है ये बॉडी जो है डिफरेंट फॉर्म में मिलती है. थर्ड पॉइंट इज लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स. बिकॉज इट इज ए किंगडम, तो हमने यहां पर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर अटेंशन देना होगा. इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो है, इंडिविजुअल्स जो है और स्पीसीज जो है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सम बात a locomotory organelles are there. Because the body of this protistan is, it is made up of only a single is there.
This is the unique character that you have already studied, that protists they are unicellular eukaryotes. लेकिन इनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई है. इस सिंगल सेल की बॉडी में कुछ ऑर्गेनेल्स इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से फॉर इट्स नीड और प्रोटेक्शन और फूड वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है. तो उसमें वो डिवीजन जो है, उसमें जो लोकोमोटरी डिवाइसेस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं. कुछ फॉर्म में सीडोपोडिया होते हैं. दे इन सम फॉर्म दे आर सीडोपोडिया, जिसमें कि द फुट लाइक स्ट्रक्चर सीडोपोडिया सीडोपोडियम. इसमें हम डिटेल में जब प्लाज्मोडियम वगैरह में वहां पर आपको देखेंगे तो अमीबा में पढ़ाएंगे एंटोमीबिया और अमीबा में क्या डिफरेंस है. एक में सिंगल सीडोपोडियम, अगर ज्यादा है सीडोपोडिया. फ्रेश वाटर फॉर्म्स दे आर सीडोपोडिया एंड दे आर नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर इज देयर and they are responsible for migrating from one place to other one is there. ठीक है. then food engulfing is there. इसका मतलब जो है इसमें सीडोपोडिया वे भी डुअल और अदर फंक्शन करते हैं. अदर ग्रुप दैट इज सिलिएटा, इसमें सिलिया इज रेस्पॉन्सिबल इज देयर रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीशियम. देन इट इज फ्लैजिला. कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिनमें कि फ्लैजिलम और फ्लैजिला, फ्लैजिलम सिंगुलर फ्लैजिला मेनी. ये जो डिवाइसेस जो है दे आर देयर बाय विच दे यूज देयर नीड अकॉर्डिंग टू देयर नीड. थर्ड टाइप का जो इसमें कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं क्योंकि दे आर लोकोमोटरी डिवाइसेस which are prominently pseudopodia, cilia, flagella, so and so, but in some form, in few form, they are absent. किसी एनिमल्स में ये जो है एब्सेंट भी होती है. इसका मतलब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे एनिमल होंगे तो वो पैरासिटिक इन नेचर होंगे, उनको जाने की जरूरत ही नहीं होगी. ऑल जो है उनकी नीड होगी वो होस्ट से लेते हैं. तो यहां पर आप इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं. इसके बाद आता है इसमें, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज रिप्रोडक्शन. एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है? इस रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, एक नेचर का एक रूल है, हूसोएवर बोर्न मस्ट डाई वन डे. इसका मतलब इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पेन है. उस ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन में वो अपने जैसे इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अपने लाइफ टाइम में अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. और ये रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल एज वेल एज इन सेक्सुअल. यू विल बी गिवन द पर्टिकुलर एग्जांपल in due when that is we will discuss in detail one. Here the characteristic feature I am restricted to only in that is kingdom Protista. तो प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन जो है, प्रोटिस्टेंट जो मेंबर्स हैं उसमें एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल इज देयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज माय व्यू इज कंसर्न इज that is the nutrition. But do you mean the term? The nutrition means the nutrients which are needed for the growth and development of any organism there. If the nutrients are required and the method by which they obtained from the environment, this process is known as nutrition. Nutrition, अब यहां पर जो न्यूट्रिशन जो है आप देखते हैं कि ये whatever the term we use here, that is saprobiotic, then photoautotropic, then holozoic. इस टाइप के टर्म जो है हम आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करना चाहेंगे. इसका मतलब ये है कि हम जो प्रेजेंट फॉर्म में आपने जो हमने एग्जांपल यहाँ कोड किए हैं कि प्रोटिस्टेंट्स दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर दो हमने टर्म लिखे हैं. वन इज ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae, commonly known as yeast. Other is Chlamydomonas. This is unicellular alga. Then it is amoeba. This is amoeba proteus. This is ancestor of that is the multicellular organism is there. यही अब आप देखते हैं कि whether it is yeast, Chlamydomonas and amoeba,
ऑल ऑफ दे आर हैविंग द बॉडी इज सिंगल सेल। ये जो सिंगल सेल उज स्ट्रक्चरल, ये अपने में कंप्लीट एनिमल क्यूल है, दे आर कंप्लीट एनिमल क्यूल है। ये यहां से कहते हैं कि जो हमारा प्रोटिस्टा है, यहीं से मल्टी सेलुलर जो है दिस किंगडम का ऑरिजिन हुआ है। तो यहां पर हम आप थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं, मे बी दिस टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक, बट यू सी इज माइकोफाइटा, ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंजाई। तो माइकोफाइटा इज दैट ग्रुप विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप, और रादर यू कैन से इट इज द किंगडम विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आर.एच. बिट्टाकर साहब ने जो फिफ्थ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया है। तो उसमें वेरियस टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू फंजाई, राइट। तो यहां पर जो है इसका मतलब यह है कि जो भी थ्री, जो माइकोफाइटा, मेटाफाइटा एंड अदर इज मेटाजोआ, आप देखेंगे कि यहां पर जो फंगस जो है इसमें मोस्ट ऑफ दी दो दे आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर इज देयर, इसमें बिलोंगिंग माइकोफाइटा फंजाई, जिसमें जो भी स्पीसीज है मेनली सेप्रोबायोटिक। If they are, why I use the term is there, biotic is there, if they derive their food from the dead, whether it is living, if they are dead and the origin is planty, then we use the term is saprophytic. The fungi is saprophytic, means the organism or the fungi which derive its food from the dead plant origin, whether it is stem, leaf, flower, etc. If they derive its food from the dead animals, सपोज कीजिए अगर कोई डॉग जो है, स्ट्रीट डॉग जो है, वो अगर कहीं रोड के किनारे पर उसकी डेथ हो जाती है और उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, तो इसका मतलब वहां से जो फूड लेंगे डेड एनिमल से लेंगे, उनको हम कहेंगे सेप्रोजोइक। और अगर दे आर डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स और द एनिमल्स, दे आर नोन एज सेप्रोबायोटिक। दिस इज द characteristic feature of that is the fungi is there. I think you must be clear in your mind is there. Second group, second type of nutrition in this protista, this is called photoautotrophic. Photoautotroph यहाँ पर टर्म लिखा है हमने, by the process whatever the photosynthesis takes place is there, in which the constant light energy is required. तो वो जो फोटोसिंथेसिस ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर आप यहां पर ले रहे हैं। सो एक पर्टिकुलर ऑफ ग्रुप विच इज यू मे टर्म में भी यूज द टर्म इज मेटाफाइटा। मेटा, वट एवर द टर्म आई यूज द मेटा रिलेटेड टू मल्टी सेलुलर इज देयर। मेटाफाइटा मीन्स दैट इज द प्लांट ग्रुप, नो डाउट दैट इज प्लांटी ग्रुप इज देयर, किंगडम प्लांटी. So that is, if you start this planty, multicellular planty, so first of all a branch of science which you may use the term is phycology. Phycology. This phycology, the study of algae. The study of algae, इसका मतलब multicellular और unicellular. It is multicellular. Phycology, क्योंकि जो एल्गी यूनिसेलुलर जो है, एग्जांपल आई कोटेड इट क्लेमाइडोमोना, उसको तो ऑलरेडी आपने प्रोटिस्टा में पढ़ लिया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम फंजाई जो एल्गी पढ़ेंगे वो कैसी होगी, मल्टी सेलुलर। सो ब्रांच ऑफ फंजाई, ए ब्रांच ऑफ एल्गी, दैट इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। और ये जो है प्रोटिस्टन से जो क्लायोडोमोनास है, यही के इसके एंसेस्टर आप कह सकते हैं, जो आगे रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्गी, देन इट इज ब्रायोबाइट, रेडियोपाइट, जिम्नो, एंजियो वगैरह वगैरह आप देखते हैं।
तो ये एंसेस्टर हो गए आपसे, दिस इज कॉल्ड मेटाफाइटा और द प्लांट इज देयर। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप और द किंगडम फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से लेकर के, जिसको आपने टर्म यूज किया, यहां पर हम टर्म यूज करेंगे मेटाजोआ। इन केस ऑफ अगर हम एनिमल के केसेस में टर्म यूज करें, द टर्म इज दिस इज प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कंपोजिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक टर्म, हियर वी मे यूज द टर्म इज देयर। तो ये जो प्रोटोजोआ जो है, इसका मतलब यह है कि प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ, in which the whosoever animal belongs to this protozoan whose body is made up of a single cell is there. Ultimately यही single cell जो है when that is getting clusters form is there, the term is proterospongia. A connecting link between protozoa and the porifera is there. So there is a connecting link that is called proterospongia. प्रोटीरोस्पोंजिया। आप लोग अभी सभी लोग पॉरीफेरा स्टार्ट कर देते हैं, स्पॉन्जेस शुरू कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम आपसे कोई पूछता है कि जो स्पॉन्जेस जो हैं दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, तो यूनिसेलुलर दैट इज प्रोटोजोआ। इसका मतलब प्रोटोजोआ एंसेस्टर से फॉर्मेशन किसका हुआ, ऑरिजिन किसका हुआ, स्पॉन्जेस का, विच आर मल्टी सेलुलर। So the connecting link between the protozoa and that is the porifera or multicellular, we here generally use the term is that is metazoa, commonly known as multicellular organism। और these multicellular organisms जो है, जिसमें कि फर्स्ट फाइलम यू विल स्टडी दैट इज द पोरीफेरा। तो पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटास, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलिन्थिस, देन इट इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का वगैरह वगैरह, और अल्टी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा वगैरह, और आप वर्टिब्रेटा, मैमेलिया तक चले जाएंगे। ये सभी जो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कंपोजिशन वी मे यूज द टर्म इज मेटाजोआ। दिस इज ऑल्सो नॉन एज दैट इज multicellular, and the main type of that is the nutrition is that is animal like, that is holozoic. From protozoa to up to the mammals, the nutrition is holozoic. That complete the food is there in the form of solid or liquid, whether phagocytosis or pinocytosis and other, whatever you use the term. So before coming on that is the particular types of organism which belongs to protista, यहां पर हमने आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंगली ही हमें आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेस जो है ना हमने थोड़ा सा थोड़ा सा डिफर किया हुआ है। आप लोगों को वो जो उन्होंने डायरेक्ट क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स, देन इट इज प्रोटोजोन। इसका मतलब ये है, आप देखते हैं कि हमने इस बेस को लेकर के इस प्रोटिस्टा को अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज द इनटेक ऑफ फूड और दैट इज द न्यूट्रिशन के बेसिस पर, तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आपके आएंगे ये। तो आप उस अकॉर्डिंग टू जो मेंशन किया हुआ है उसमें क्राइसोफाइट्स एंड दैट इज द डायनोफ्लैजिलेट्स फॉलोड बाय यूग्लिनोइड्स। ये ऑल द थ्री ग्रुप्स जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देयर फूड like plant is there. So that's why these three group means chrysophytes and other is dinoflagellates, then other is euglena. ये तीनों जो है वो होंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोर्थ जो है जिसमें उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स किया हुआ है, मतलब they derived their from the dead organic matter is there। तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो है स्लाइम मोल्ड्स वाला। तो हम वन बाई वन आप कहेंगे कि इधर से सर ने उधर पढ़ाया है, तो हम उसी को बेस लेकर के स्लाइम मोल्ड्स का
ए लिटिल बिट ब्रीफ करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं तीसरा जो ग्रुप जो है प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में आपके एक तो फ्री लिविंग हो गए, फ्री लिविंग में आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में अगर हम जो लेंगे वो उसमें हम एंटामीबा ले सकते हैं। फ्री लिविंग में सिलिएटा के बेस पर या फ्लैजिला के बेस पर हम उनका क्या करते हैं, डिवीजन करेंगे। तो जब हम उसको आपको डिटेल में एज पर जाएंगे, एज पर एनसीईआरटी और डायरेक्शन, तो फिर हमने थोड़ा सा ए लिटिल बिट डिटेल करेंगे। यहाँ पर जो प्रोटिस्टा का मैंने आपको ब्रीफिंग दिया हुआ है कि प्रोटिस्टा इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हीकल साहब ने किया है। उसको दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट का ये मैं आपको एडवांस थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ क्योंकि आपने एनालिटिकल अप्रोच जरूरी लगाना होगा। इस प्रोटिस्टा में अबाउट 60,000 से लेकर के 2 लाख स्पीसीज है। हाउ यू इन a particular time you can this recognize इन माइंड इज देयर। तो ये जो इतनी स्पीसीज हैं आप उनको सेकंड में कैसे लर्न करेंगे। तो इसका मतलब हमने आपको ये जो है मोनेरा जो ग्रुप जो है सिंपल फॉर्म से आपकी कम्प्लेक्स सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्डेड बाय डिफरेंट टेक्सोनॉमिस्ट इज देयर। तो इसमें हमारे जो सबसे ज्यादा व्यू है वो सिम्बायोसिस का है। उसके बाद जब यूकैरियोट्स हो गया तो ये यूकैरियोट्स जो है वो मैंने आपको ये डिफरेंट हैबिटाट है, उनकी बॉडी फॉर्म भी डिफरेंट है। लोकोमोटरी डिवाइस में वगैरह वगैरह हमने आपको थोड़ा सा डिटेल किया हुआ। दिस इज हम कह सकते हैं कि ये जनरल या कैरेक्टरिस्टिक या सैलिएंट फीचर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा इज ओवर। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो उसमें जो सिंपल से टाइप्स दिए हुए हैं उस पर 1 और 2 हम आपको डिटेल में ले जाएंगे। थैंक यू टू यू ऑल। चल भैया राजा मेरे बेटा दिखा कि मैं कितना दिया हुआ, और अपने कमेंट भी देना साथ में। इतना पढ़ा दें बहुत है।